who is our member, and I'm doing reading for Subrata Mandal for 2024. So please listen carefully, Subrata Mandal. First card for your emotional well-being. That means Subrata Mandal, first card which I will be reading regarding your relationship, your partner relationship, your immediate relationship, your immediate family relationship, and your community friendship relationship. So let's find out what is a prediction for a relationship. So it is a giraffe spirit, and when we are actually talking about the relationship, you should actually not look into the smaller or the finer points of the relationship. Actually, you should be actually looking into a bigger picture. And when I'm talking about a bigger picture, that means the kind of effort, the kind of thought process you have, it should not be actually a small duration. You should always make a relationship for a longer period. That means when we are interacting for regarding your partner relationship, Subrata Mandal, it is advisable that whatever challenges you have in your relationship, don't go into the smaller nitty-gritty of the relationship, rather than plan or do a strategic planning for a bigger picture. So if you have a bigger plans, thinking of out of the box as far as your relationship is concerned, because the immediate success or immediate failure is not a cup of tea for you, Subrata Mandal. It has to be very well thought of, and you should have the ability to forget and forgive kind of a negative aspect in any relationship. Let it be your partner relationship, your friends relationship, your family members relationship. You have to put your heart and soul and plan for a bigger achievement in the relationship, for a bigger picture in the relationship, for bigger harmony in the relationship, and for a bigger happiness and joy in the relationship. So please work when we are talking about 2024, Subrata Mandal. Time has come to think, to plan for a bigger achievement in the relationship, for bigger emotional gains in the relationship. That is what is being indicated. And 2024, Subrata Mandal, for your relationship, as per tarot, it is very crucial. So time has come to start planning and looking into a bigger picture, thinking of the out of box, taking bold decisions in a relationship in 24, so that you can get the ultimate success, ताकि आपको अच्छी सक्सेस मिले, ताकि आप जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, पार्टनर रिलेशनशिप हो या आपके फ्रेंड सर्कल का रिलेशनशिप हो, इसमें इमोशनल गेन के लिए आपको बिगर पिक्चर का सहारा लेना पड़ेगा. छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटे चैलेंजेस आपके कप ऑफ टी नहीं है. आपको बड़ा प्लान करना चाहिए ताकि आपको बड़ी सक्सेस मिल सके इन योर रिलेशनशिप. और हम बात करते हैं आपके करियर रिलेटेड इश्यूज पे. अगर आपके पास हैं तो वन कार्ड है आपके लिए. करियर में आपके लिए जरूरी है कि जो भी काम करें वो लॉयल्टी के साथ करें. इट इज अ डॉग स्पिरिट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स, दैट मीन्स दे आर लॉयल एंड दे आर सो मच रेडी टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर द कॉज ऑफ द ओनर. सो समथिंग लाइक दैट. जहाँ पर आप काम करते हैं या काम करने की सोच रहे हैं, उसमें पहली दो चीजें बहुत जरूरी हैं, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी. तो लॉयल्टी इसलिए कि जो आपके लिए आपके ब्रेड एंड बटर अर्न करने में आपकी सहायता कर रहा है, ही आपको उनको कभी भी उनको धोखा नहीं देना है. उन लोगों को हमेशा, नॉट ओनली इन 2024 सुब्रता मंडल, बट ऑलवेज यू हैव टू बी लॉयल एंड यू हैव टू बी कमिटेड टुवर्ड्स द कॉज, टुवर्ड्स द वर्क विच यू आर डूइंग. ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी इज द बेस्ट
बेस्ट पॉलिसी। इसके अलावा आप अगर कोई जो काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम के लिए पैशनेट नहीं है, तो 2024 में आपके लिए ज़रूरी है कि ऐसा काम आप ढूंढें जहां पर आप अपने हार्ट एंड सोल उसमें लगा सकें, आप पैशनेट हो सकें चीज़ों को। तो 2024 का जो साल है वो दैट इज़ ओनली फॉर यू टू पुट योर पैशन इनटू एक्शन। तो जो पैशन है वही काम कीजिए, जो आपको काम करना अच्छा लगता है करियर में, वो काम अगर नहीं है आपके पास तो आप उसको तलाशिए और उसको ज्वाइन कीजिए। और जब आप ज्वाइन कर लें और तब आपको ये वो काम, जो पैशनेट काम आपको मिल जाए, जस्ट जहाँ पर आपको मज़ा है काम करने में और जहाँ जिस काम को आप लव करें, वो काम करिए। 2024 में आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको पूरे साल के जो भी काम करें, या ये एप्लीकेबल आपके रिलेशनशिप में भी रहता है, आपके पूरे वेलबींग पर रहता है। सुब्रता मंडल, बी लॉयल एंड बी ऑनेस्ट एंड बी कमिटेड। ये 2-3 चीज़ें आपके लिए 2024 में अगर आप इनका एप्लीकेशन करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे, आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस आपको मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट। ये लवली इंडिकेशन है। लेट्स फाइंड आउट, सपोज अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस आपके लिए 2024 में सक्सेस कुछ लेकर आएगा। तो ये एक्चुअली फ्रॉग स्पिरिट है। दैट मीन्स कि आपके लिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपको सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस जॉब ना करके बिजनेस करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको विशफुल थिंकिंग आपको रोकनी होगी। बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, हम बिजनेस करेंगे, हम ये होगा, हमारे साथ ये होगा, हम ये करेंगे। चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए कितने ही पैशनेट क्यों ना हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, पहले अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन करना पड़ेगा आपको बिजनेस के लिए कि और अगर आप जॉब करते हैं तो सिर्फ 3-4 ही चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। एक तो लॉयल्टी, एक ऑनेस्टी, एक कमिटमेंट एंड द पैशन फॉर द वर्क। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एकदम अपने सोच को चेंज करना होगा। आपको क्लैरिटी की बहुत सख्त ज़रूरत होगी। आप जो कर रहे हैं उसमें आपको कितना फ़ायदा होगा और इसका क्लियर आइडिया होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप, और अगर आपके पास कोई बहुत विशफुल थिंकिंग है, बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं बिजनेस को लेकर और उस पर आप काम करते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है सिर्फ पैशन से या सिर्फ ऑनेस्टी से या सिर्फ लव व्हाट यू डू, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कई सारे हेड्स देखने पड़ेंगे और हर एक हेड्स जो भी देखेंगे बिजनेस में उसमें क्लैरिटी होना ज़रूरी है। सपोज फॉर एग्जांपल फिनेंस देख रहे हैं तो फिनेंस में कितना पैसा लगा सकते हैं, लगाने के बाद कितना पैसा आएगा, उस पे ट्रस्ट एंड क्लैरिटी, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन ऐसा चीज़ अगर आप बोलेंगे कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली ये आपका जॉब रिलेटेड आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा 2024। लेकिन अगर आप चैलेंज लेना चाहते हैं तो क्लियर द क्लटर, जो भी नेगेटिव चीज़ है दैट एक तो वो हटानी होगी। दूसरी बात, जो फालतू की चीज़ है वो भी दिमाग से हटानी होगी। एकदम टू द पॉइंट अगर आप सोच कर बिजनेस करेंगे तभी आपका बिजनेस सक्सेस होगा। और आपको कोई भी जैसे बोलते हैं कि आप अजम्पशन पर आपका बिजनेस नहीं होगा और बिल्कुल सिर्फ पैशन से भी आपका बिजनेस नहीं होगा। सो बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल थॉटफुल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अगर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तभी सुब्रतो मंडल you go for the business, otherwise job is fine for you. And let's find out about the health related things, and उसके लिए कार्ड मैंने निकाला है, ये है हॉक स्पिरिट। एंड hawk spirit is actually indicating more of a mental health things for you. So in 2024 आपकी अगर हेल्थ का कोई इशू है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको पॉजिटिव सोचना है।
आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही अलाइन हो जाएंगी और आपकी हेल्थ पर भी इसका असर पड़ेगा, स्पेशली मेंटल हेल्थ एक इशू हो सकता है आगे 2024 में। तो इसके लिए आपको लगातार पॉजिटिव रहने का इंडिकेशन दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस होती है सुब्रतो मंडल, यू हैव टू प्रैक्टिस द स्पिरिट, द पॉजिटिव स्पिरिट, एंड इफ यू आर पॉजिटिव देन डेफिनेटली you will be successful, and those positivity will guide you not only in your health but also in your relation, in your career, and in case if you are planning a business which की रीडिंग मैंने की है उसमें भी पॉजिटिविटी, मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए 2024 में, और उसकी तरफ आपको काम करना होगा। और जब मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो डेफिनेटली आपकी फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी सही हो जाएगी, बिकॉज you have those kind of strong spirit which will guide you in 2024. So summarizing little bit, one is please work for a bigger picture, think out of the box, be loyal, be committed, be honest, and business करना चाहते हैं तो definitely बहुत ही ज़्यादा strategic और बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होना पड़ेगा। क्लटर किसी भी जगह कहीं भी अजम्पशन पर बिजनेस आपके लिए नहीं है। हेल्थ को लेकर चीज़ें तभी पॉजिटिव रहेंगी सुब्रतो जब आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे चीज़ों को, और ये जो पॉजिटिविटी, द स्पिरिट ऑफ दिस पॉजिटिविटी विल गाइड यू नॉट ओनली इन योर हेल्थ बट इन योर जॉब, इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो। सो लुक इन टू दैट, ऑल द बेस्ट। एंड Subrata Mandal, wish you a happy new year. All the best.